Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In today's video we will learn about heap sort and its analysis. So let's begin. Now just like merge sort, heap sort जो है उसका भी overall running time is order of n log n. But with the difference कि जो heap sort है वो हमारी sorting करता है in place. That is merge sort के लिए जो हमें extra space की requirement थी वो heap sort में हमें requirement नहीं होती है. So now let's see what is a heap. Now heap data structure, it can be viewed as a binary tree which can either be a complete binary tree or almost complete binary tree. Now what do we mean by complete binary tree? Complete binary tree का मतलब है कि tree में हमारे जितने भी levels होंगे वो completely filled होंगे, right? So let's see अगर हमारे पास कोई tree है of height 1. So this is a complete binary tree of height 1. This is another complete binary tree of height 2. This is another complete binary tree of height 3. So ये तो हो गई हमारी complete binary tree जिसमें जो levels होंगे वो completely filled होंगे. अगर हम कोई tree बना देते हैं like this, so can we classify this as a complete binary tree? No. Why? Because the levels जो है वो completely filled नहीं है. So this is of height 2 and this is of height 3. Now what do we mean by almost complete binary tree? Now almost complete binary tree का मतलब है almost complete binary tree says कि जो भी हमारी tree में leaves होंगी वो या तो last level पे होंगी या फिर लास्ट माइनस 1 लेवल पे होंगी. जैसे कंप्लीट बाइनरी ट्री के केस में जितनी भी लीव्स है वो कहाँ पे होंगी? सिर्फ लास्ट लेवल पे. ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री सेज कि या तो लीव्स लास्ट लेवल पे होंगी या फिर लास्ट माइनस 1 लेवल पे. तो अगर हमने कोई ट्री बना दी लाइक दिस, सो कैन आई से दिस इज अ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री? यस, दिस इज अ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. व्हाई? बिकॉज जो लेवल्स है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है. So this is one example of almost complete binary tree. Another point says almost complete binary tree में जितनी भी हमारी filling of nodes होगी वो from left to right होगी. Like for example अगर मैंने कोई tree बना दी like this, so this is again not an example of a almost complete binary tree because it is mandatory कि पहले आप left node बनाओ और उसके बाद ही उसकी right node बनाओ. And the third property of almost complete binary tree says कि before going to the next level, जो previous level है वो हमारा completely filled होना चाहिए. So ये दोनों ही trees इस property को satisfy नहीं कर रही. हम इस next level पे चले गए without filling this level. So again this is not a almost complete binary tree. Similarly in this case we have gone to the next level before filling out the previous level completely. So almost complete binary tree says कि नेक्स्ट लेवल पे हम तभी जाएंगे बिफोर फिलिंग आवर प्रीवियस लेवल कंप्लीटली. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. तो हीप डेटा स्ट्रक्चर जो है वो दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो कर सकता है, या तो कंप्लीट बाइनरी ट्री वाली या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री वाली. नाउ ईच नोड ऑफ द हीप कॉरेस्पॉन्ड्स टू वन ऑफ द एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट इज स्टोर्ड विद इन द एरे. सो हमें एक एरे गिवन होता है और इस एरे को हम सॉर्ट करने के लिए यूजिंग हीप सॉर्ट हम इस हीप डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं. सो ईच नोड ऑफ द हीप वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है टू एन एलिमेंट जो स्टोर होता है हमारे एरे के अंदर. नाउ हीप कैन बी ऑफ टू टाइप्स. इट कैन आइदर बी अ मिन हीप और अ मैक्स हीप. नाउ वी विल सी व्हाट डू वी मीन बाय मिन हीप एंड मैक्स हीप. नाउ मैक्स हीप सेज कि जो भी हमारा रूट पे एलिमेंट होगा वो ग्रेटर होना चाहिए दैन दी एलिमेंट ऑफ इट्स चिल्ड्रन. सो अगर मैंने कोई हीप बनाया लाइक दिस, So this is an example of a max heap क्योंकि रूट पे जो एलिमेंट है वो ग्रेटर है देन द वैल्यू ऑफ इट्स चिल्ड्रन नोड्स. सिमिलरली इस सब ट्री में भी 60 जो है वो ग्रेटर है देन द वैल्यू ऑफ इट्स चिल्ड्रन. सिमिलरली ये जो इंटायर ट्री में हम देखें जो रूट की वैल्यू है वो ग्रेटर है देन द वैल्यू ऑफ इट्स चिल्ड्रन. So this is a max heap. Min heap says
root always contains the minimum element. Root always contains the minimum element for every subtree. जैसे अगर हमने कोई हीप बनाई लाइक दिस, राइट, सो दिस इज अ मिन हीप. रूट में जो वैल्यू होगी, अगर हम इस सब ट्री में देखें, रूट की जो वैल्यू है वो लेस है देन द वैल्यू ऑफ इट चिल्ड्रन नोड. सिमिलरली इस सब ट्री में देखें, रूट की जो वैल्यू है वो लेस है देन द वैल्यू ऑफ इट चिल्ड्रन नोड. सिमिलरली जो रूट नोड है हमारी, इसकी वैल्यू लेस है देन द वैल्यू ऑफ इट्स चिल्ड्रन. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय अ मिन हीप. Now it says कि given the index of any node, हम easily compute कर सकते हैं उस node के parent को, उसके left child को and उसके right child को. So suppose अगर हमें ये array given है और इसके ऊपर ये इसके indices लिखे हैं. Now let's construct a heap from this. सबसे पहले index 1 पे 100, then 2 पे 10, then 3 पे 20, 4 पे 1, 5 इंडेक्स पे 8 एंड 6 इंडेक्स पे 15. राइट, अब अगर हमें किसी नोड का पेरेंट कंप्यूट करना है, उसका लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स कंप्यूट करना है और उसके राइट चाइल्ड का इंडेक्स कंप्यूट करना है. सो किसी भी नोड के लिए उसके लेफ्ट चाइल्ड का क्या इंडेक्स होगा? ट्वाइस इनटू द इंडेक्स ऑफ दैट नोड. राइट चाइल्ड का क्या इंडेक्स होगा? ट्वाइस into the index of that node plus 1 and उसके parent का क्या index होगा? Floor value of the index divided by 2. Right, so इसको example से देखते हैं. Suppose ये हमें node given है 2. इसका अगर मुझे compute करना है कि इसके left child का क्या index होगा, तो left child का क्या index होगा? इसका index है 2, so 2 into 2. That is 4. So this is the left child of this node. Right child का क्या index होगा? 2 into the index of that node, which is 2 plus 1, which is 5. तो ये right child का index आ गया. And इसके 2 के parent का क्या index होगा? 2 divided by 2 की floor value, so which is 1. So ये इसके parent का index हो गया. Let's see another example. Suppose हमें नोड 3 जो है, इसके लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड और पेरेंट को कंप्यूट करना है. सो लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा? इसका लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स होगा 6, 3 into 2. राइट चाइल्ड यहाँ पे कोई है नहीं. सपोज अगर इसका राइट चाइल्ड भी होता, राइट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा? 3 into 2 plus 1, which is 7. और इसके पेरेंट का क्या इंडेक्स होगा? 3 divided by 2 की फ्लोर वैल्यू. सो 1.5 की फ्लोर वैल्यू क्या होगी? 1. सो विच इज द इंडेक्स ऑफ इट्स पेरेंट. तो दिस इज हाउ, अगर आपको कोई भी नोड गिवन है तो आप इजीली उसके पेरेंट का इंडेक्स, उसके लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स एंड उसके राइट चाइल्ड का इंडेक्स को कंप्यूट कर सकते हो. Now let's see the max heap property. Max heap property says that for every node I other than the root, the value of the parent node should be greater than or equal to the value of that node. So let's suppose अगर हमने कोई heap construct करी like this, right? This is index 1, this is index 2 and this is index 3. Suppose यही हमारा array में इस तरीके से data values हमारी store है. 2 पे 20 and 3 पे 30. So now अगर हम रूट को छोड़ के इसके लेफ्ट चाइल्ड के देखें, वैल्यू क्या है लेफ्ट चाइल्ड की? 20. दिस वैल्यू इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द पेरेंट नोड. सिमिलरली अगर हम इसके राइट चाइल्ड के लिए देखें, इस नोड के लिए द वैल्यू ऑफ द पेरेंट नोड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ दिस नोड. सो दिस इज अ मैक्स हीप. बट अगर हमने कोई हीप कंस्ट्रक्ट करी, लेट्स से लाइक दिस, now let's consider
ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेफ्ट साइड द वैल्यू ऑफ द नोड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द पेरेंट नोड, पेरेंट नोड की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है देन द वैल्यू ऑफ दिस नोड। बट अगर हम इस नोड के लिए देखें तो दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मैक्स हीप, सो दिस इज नॉट अ मैक्स हीप, दिस इज अ मैक्स हीप। सिमिलरली मिन हीप में क्या होता है, जस्ट रिवर्स ऑफ मैक्स हीप की जो वैल्यू ऑफ द पेरेंट नोड होगी वो लेस होगी देन द वैल्यू ऑफ द नोड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज अगर हमारे पास कोई हीप गिवन है लाइक दिस, तो अगर हम इस नोड के लिए देखें, वैल्यू ऑफ द नोड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द पेरेंट, यस। द वैल्यू ऑफ दिस नोड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द पेरेंट, यस। तो दिस इज अ मिन हीप। बट अगर हम कोई हीप कंस्ट्रक्ट करें लाइक दिस, so is this a min heap? No, because for this node the value of the parent is greater than the value of the node, so this is not a min heap. So this is what we mean by max heap property and the min heap property. Now it says कि अगर हमारा जो array है वो sorted है descending order में, then it will always build a max heap, and if it is sorted in ascending order then it will always build a min heap. So let's take an example. Suppose अगर हमें array given है with values as, so this is a reverse sorted array. अब अगर हम इससे heap construct करें, these are the indices. इंडेक्स 1 पे 8, इंडेक्स 2 पे 7, इंडेक्स 3 पे 6, इंडेक्स 4 पे 5, इंडेक्स 5 पे 4, इंडेक्स 6 पे 3, इंडेक्स 7 पे 2 एंड इंडेक्स 8 पे 1. सो दिस इज अ मैक्स हीप। रूट पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर है देन द वैल्यू ऑफ इट्स चाइल्ड नोड्स, राइट? सो दिस इज अ मैक्स हीप। बट अगर हम कोई एरे ले एज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, 1 2 3 पे ले लेते हैं 4 5 6 7 8. Now if I create a heap from this, index 1 पे है 1, index 2 पे है 3, index 3 पे है 4, index 4 पे है 5, index 4 पे है 5, index 5 पे है 6, index 6 पे है 7 and index 7 पे है 8. So this is a min heap. The value of for any of the node that is greater than the value of its parent. Now it says कि given the height of a tree, what is the maximum and minimum number of nodes in a complete binary tree? Now we know that heap is a binary tree. So height of a tree क्या होती है? Height of a tree is the number of edges that are on the longest path from the root to the last node, which is the leaf. नाउ अगर हमें ट्री की हाइट गिवन है, तो हमें कैसे डिटरमिन करेंगे कि उसमें मैक्सिमम और मिनिमम कितनी नोड्स हो सकती हैं, राइट? तो अगर हमें कोई कंप्लीट बाइनरी ट्री गिवन है ऑफ हाइट 1, तो लेट्स से कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट 1 कैसे होगी? लाइक दिस, राइट? सो इसमें मैक्सिमम कितनी नोड्स है? मैक्सिमम नोड्स हो सकती हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री में ऑफ हाइट 1, मैक्सिमम नोड्स कैन बी 3, एंड मिनिमम कितनी नोड्स हो सकती है? मिनिमम नोड्स हो सकती हैं 2 nodes, right? So maximum is 3 and minimum is 2. अगर हमने 1 ही छोड़ दिया तो ये complete binary tree तो हुई नहीं of height 1, right? So minimum number of nodes is 2 and maximum is 3. अगर हमने कोई complete binary tree बनाई of height 2, let's say like this. Now what is the maximum number of nodes? Maximum number of nodes is 7 and minimum number of nodes is, मिनिमम कितनी नोड्स होनी चाहिए ताकि ये हाइट ट्री की जो हाइट है वो 2 रहे? अगर हम इन 3 नोड्स को हटा दें तो ट्री की जो हाइट है वो 2 रहेगी। सो मिनिमम कितनी नोड्स हमें चाहिए? 1 2 3 एंड 4,
राइट? अब अगर हमने कोई ट्री बनाई लेट्स से ऑफ हाइट 3, so this is my complete binary tree of height 3. मैक्सिमम कितनी नोड्स है इसमें? 1, 2, level 0, level 1, level 2 and level 3. Maximum nodes are 15 and minimum कितनी nodes है? 8. अगर हम इन वाली nodes को हटा दें तो ट्री की हाइट जो है वो 3 रहेगी, right? So maximum 15 and minimum 8. So can we derive a formula from this कि maximum and minimum हमारी कितनी nodes होंगी in any complete binary tree which is of height h, right? So जब height 1 की node, जब height ट्री की 1 है तो मैक्सिमम है 3 एंड मिनिमम है 2. हाइट 2 के लिए मैक्सिमम है 7 एंड मिनिमम है 4. हाइट 3 के लिए मैक्सिमम है 15 एंड मिनिमम है 8. So can we say maximum number of nodes in any complete binary tree of height h is 2h plus 1 minus 1, right? अगर हम इसमें h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें एज 1 तो कितनी मैक्सिमम नोड्स हो जाएंगी हमारी? 1 plus 1 2, 2 to the power 2 4 minus 1 is 3. इसके लिए देखें तो हाइट अगर 2 है तो 2 to the power 3 which is 8, 8 minus 1 is 7. इसके लिए देखें तो 2 to the power 4, 4 minus 1 is 15. और मिनिमम कितनी नोड्स होंगी? मिनिमम नोड्स इज 2 to the power h. अगर हाइट 1 है तो 2 है, अगर हाइट 2 है तो 4 है, अगर हाइट 3 है तो 8 है and so on. So this is how we can calculate maximum and minimum number of nodes in any complete binary tree of height h. Now अगर हमें ये ट्री मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स हमारी है 2 to the power h, तो can we compute the height of the tree now? If I take log both sides, log n h log 2, so log base 2n is h. So can we say if the number of nodes are given to us, the height of the tree will be log n? So we say that the height of the heap is log n. Now let's look at the three procedures that are required for heap sorting. First is max heapify. Now max heapify procedure क्या करेगा? जो हमारी heap property को maintain करेगा. Let's consider कि अगर हम जो heap है वो construct कर रहे हैं as a max heap. So max heap के लिए max heapify procedure जो है वो maintain करेगा heap max heap property, which is कि जो root पे जो element है वो greater है than the value of its child nodes. Then the second procedure is build max heap. Build max heap क्या करेगा? आपके max heap को construct करेगा from the unordered array. And the third is heap sort procedure जो आपके array को sort करेगा but sorting with using in place method, right? So in place method को use करके जो हमारा heap sort है उसका overall running time क्या आ जाएगा? Order of n log n, like the merge sort. So now let's consider some of the properties of the complete binary tree. Suppose हमें कोई heap है given है like this, and these are the indices of the heap. Now it says कि अगर हमारे पास indices हैं, then we can determine the starting point of the leaves. If we have the indices, we can determine the starting point of leaves. Now what do we mean by this is, in a complete binary tree we have the property that leaves अगर एक point से start होंगी, then from that point till the last point all will be leaves, right? So इस tree के लिए अगर हम देखें leaves कौन से point से start हो रही हैं?
लीव स्टार्ट हो रही हैं इस फोर्थ वाले इंडेक्स से, एंड फोर्थ वाले इंडेक्स से लेके जो हमारा लास्ट इंडेक्स है 6, इस तक सारी हमारी लीव्स है। 4 भी लीफ है, 5 भी लीफ है एंड 6 भी लीफ है, राइट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री कि अगर लीव्स एक पॉइंट से स्टार्ट होंगी सो उस पॉइंट से लेके टिल द लास्ट पॉइंट ऑल विल बी लीव्स। सो वी कैन से फॉर n nodes in complete binary tree, or almost complete binary tree, अगर हमारे पास n नोड्स हैं सो n/2 की फ्लोर वैल्यू +1 टिल n ऑल विल बी लीव्स, राइट। सो इसको एग्जांपल से देखते हैं। इस वाली हीप में हमारे पास कितनी नोड्स है टोटल? n की वैल्यू है 6, राइट। सो अगर मैं 6/2 की फ्लोर वैल्यू लूं दैट इज 3, 3 + 1 is 4, so 4 till n that is 4 till 6 ऑल आर लीव्स। 4 भी लीफ है, 5 भी लीफ है, 6 भी लीफ है, राइट। एक और एग्जांपल से देखते हैं। सपोज राइट नाउ दिस इज माय ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। n की क्या वैल्यू है? 8 डिवाइडेड बाय 2 +1 दैट इज 4, 4 + 1 5, सो 5 टिल 8 क्या हमारी सारी लीव्स हैं? यस, 5 भी लीफ है, 6 भी लीफ है, 7 भी लीफ है एंड 8 भी लीफ है, राइट। तो कैन वी से कि जो हमारी लीफ होती है एवरी लीफ इज अ ट्री विद वन नोड, एवरी लीफ is a tree with one node, and जो हमारा heap data structure है, heap भी क्या होती है? It is a binary tree. So and heap is also a binary tree. So can we say that every leaf is a heap? Every leaf is a heap. So this is another conclusion that we draw, and इसको हम use करेंगे while sorting our data. Now let's take an example and use heapify procedure to sort. Suppose हमें कोई unordered data given है in a array like this. 1, 5, 6, 8, 12, 14 and 16 और ये इसके indices हैं। Now सबसे पहले let's build a heap from this. राइट नाउ हम कुछ मैक्स हीप या मिन हीप नहीं बिल्ड कर रहे हैं, हम सिर्फ हीप को बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद लेटर हम देखेंगे कि मैक्स हीपिफाई प्रोसीजर को कैसे यूज करना है टू मेंटेन द मैक्स हीप प्रॉपर्टी। सो हमने इस डेटा को यूज करके हमारे हीप को बिल्ड कर लिया। (14, 16) and these are the indices. अभी जो हमने प्रॉपर्टी देखी है उससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी लीव्स कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं। तो हमारी कितनी नोड्स है हीप में? वी हैव टोटल 7 नोड्स। तो 7/2 की फ्लोर वैल्यू विच विल बी 3, 3 + 1 टिल 7 क्या होंगी हमारी सारी लीव्स? दैट इज 4 से लेके 7 तक, 4 टिल 7 सारी क्या हमारी लीव्स है। एंड हमारी नॉन लीव्स कौन कौन सी है? नॉन लीव्स है हमारी 1 से लेके 3 तक, 1, 2, 3 ये इंडिसेस पे क्या है हमारी नॉन लीव्स है, राइट। सो अगर हम सिर्फ पहले इस लास्ट वाले स्ट्रक्चर को देखें, सिर्फ हम लीव्स को अगर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब एवरी लीफ इज अ ट्री विद वन नोड, राइट। दैट मींस वी कैन से कि हर एक लीफ जो है वो हमारी हीप है। सो अगर हम इंडिविजुअली देखें इसको तो ये हमारी एक मैक्स हीप ही है, राइट। अगर हम इस 5 वाले इंडेक्स की नोड देखें इंडिविजुअली देखें तो ये एक मैक्स हीप है। 6 वाले इंडेक्स पे देखें 14 ये भी एक मैक्स हीप है। इस वाले इंडेक्स पे देखें 7 पे 16 ये भी एक मैक्स हीप है, राइट। अब अगर हम इस वाले लेवल पे देखते हैं, राइट, एट लेवल 1,
सो नाउ वी कैन सी कि ये जो 5 है ये भी मैक्स हीप प्रॉपर्टी को नहीं मेंटेन कर रहा, जो 6 है ये भी मैक्स हीप प्रॉपर्टी को नहीं मेंटेन करना। दैट मीन्स जो पेरेंट की जो वैल्यू है वो लेस है देन द वैल्यू ऑफ इट्स चिल्ड्रन। सो नाउ वी विल यूज द हीपिफाई मेथड टू मेंटेन द मैक्स हीप प्रॉपर्टी। सो लेट्स सी हाउ वी विल मेंटेन द मैक्स हीप प्रॉपर्टी। नाउ हमें सबसे पहले कंसिडर करना है, कंसिडर लार्जेस्ट नॉन लीफ नोड इंडेक्स। हीपिफाई मेथड के लिए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लार्जेस्ट नॉन लीफ इंडेक्स नोड से। तो लार्जेस्ट नॉन लीफ इंडेक्स नोड कौन सा है? 3, राइट। तो सबसे पहले हमने 3 से स्टार्ट किया। अब 3 पे वैल्यू देखा, 3 पे क्या वैल्यू है? 6 को हमने देखा, कंपेयर किया 14 से, 14 6 से बड़ा है, एंड 6 को हमने कंपेयर करा 16 से, 16 जो है वो 14 से भी बड़ा है। सो आउट ऑफ दिस हमारी कौन सी वैल्यू आनी चाहिए रूट पे? 16। सो हम 6 और 16 को आपस में स्वैप कर देंगे। सो स्वैप करके हमें क्या मिलेगा? 1 5 16 8 12 14 एंड 6, राइट। सो नाउ अब हम देख सकते हैं कि जो हमारी नॉन लीफ नोड 3 है इसके लिए हीप प्रॉपर्टी, मैक्स हीप प्रॉपर्टी मेंटेन हो रही है, राइट। पेरेंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है देन द वैल्यू ऑफ इट्स चिल्ड्रन। सिमिलरली नेक्स्ट नॉन लीफ नोड को कंसिडर करेंगे विच इज 2, विच इज नाउ दिस नोड। अगेन मैक्स हीपिफाई मेथड के लिए हम देखेंगे कौन सी वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट है। 12 विद लार्जेस्ट, तो हम 12 को स्वैप कर देंगे विद 5। So now we will get 1 12 16 8 5 14 and 6। यही मिलेगा हमें, राइट। सो ये हमें these are the indices. So now we can see जो हमारी लीफ नोड्स थी 4 5 6 7 ये तो ऑलरेडी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रही थी, राइट। अब हमारी 2 3 4 5 6 7 सारी मैक्स हीप प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रही है, राइट। नाउ लेट्स गो टू दी नेक्स्ट इंडेक्स, दैट इज इंडेक्स 1। इंडेक्स 1 पे अब हम देख रहे हैं out of 12 and 16 which is larger value? 16। so 16 को swap कर देंगे with 1। so after swapping we get this, now again we can see कि 1 जो हमारा इंडेक्स है उस पे तो हीप प्रॉपर्टी मेंटेन हो गई, बट ये जो 3 इंडेक्स है इस पे अगेन हीप प्रॉपर्टी वायलेट हो गई क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो लेस हो गई देन द वैल्यू ऑफ इट्स चिल्ड्रन। सो अगेन वी विल कॉल मैक्स हीपिफाई ऑन दिस। अगेन मैक्स हीपिफाई कॉल करेंगे तो 1 किससे स्वैप हो जाएगा? 14 और 16 में लार्जर वैल्यू इज 14, सो 14 विल बी स्वैप्ड विद 1। This is index 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So now we can see कि हमारी जितनी भी नोड्स हैं उन सब पे हमारी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी मेंटेन हो रही है। 16 जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 12 एंड 14। 12 जो है वो ग्रेटर है 8 एंड 5 से, 14 जो है वो ग्रेटर है 1 एंड 6 से। सो दिस इज आवर मैक्स हीप फ्रॉम द डेटा दैट वाज गिवन इन द array. Now let's look at the code of max heapify. अब यही हमें डेटा गिवन था, राइट। इससे हमने सबसे पहले अपना हीप कंस्ट्रक्ट कर लिया था। सो नाउ मैक्स हीपिफाई मेथड हमारी कौन कौन सी नोड्स पे कॉल हुआ? सबसे पहले हमने 3 पे कॉल किया, देन 2 पे एंड देन 1 पे। वाई? क्योंकि यही हमारी नॉन लीव्स है तो हमने देखा है कि हमें कैसे कंप्यूट करनी है बिफोर। नाउ सबसे पहले हम मैक्स हीपिफाई कॉल करेंगे ऑन दिस नोड विच इज इंडेक्स 3, विच इज द लार्जेस्ट नॉन इंडेक्स नॉन लीफ नोड। तो मैक्स हीपिफाई हमने कॉल करा, आई की क्या वैल्यू है इसके लिए? 3। तो इसके लिए सबसे पहले इसका लेफ्ट चाइल्ड कंप्यूट हो गया। लेफ्ट चाइल्ड इज 2 into i। सो एल की क्या वैल्यू है? एल इज 6 एंड आर इज 7। ये इसके लेफ्ट चाइल्ड है एंड राइट चाइल्ड। दिस इज द लेफ्ट चाइल्ड एंड दिस इज द राइट चाइल्ड।
Now it says if the value of the left child is less than or equal to a dot heap size. So what is the heap size? Heap size है 7. So a dot heap size is 7. L जो है वो less than or equal to a dot heap size है. Yes, 6 is less than or equal to 7. And a dot L. A L पे क्या वैल्यू है हमारी? A of 6 पे वैल्यू है 14. Is 14 greater than the value of A of 3 which is 6? Yes. So largest हम डिक्लेयर कर देंगे हमारी लेफ्ट नोड को. So currently ये जो 14 है इसको हमने डिक्लेयर कर दिया एज लार्जेस्ट. अगर हमारी जो नोड है उसकी वैल्यू ग्रेटर होती, इन दैट केस दैट विल बी आवर लार्जेस्ट. नाउ वी कम टू द राइट नोड. क्या R की जो वैल्यू है, R की इंडेक्स है 7. 7 is less than or equal to A dot heap size. Yes, 7 is equivalent to 7. And A of R पे क्या वैल्यू है? A of R पे वैल्यू है 16. Is 16 larger than the value of the largest? Yes. So largest हो गया अब हमारा R. So this is not the largest. Now this R is the largest. Now if largest is not equal to I, largest का जो इंडेक्स है 7 is not equal to I which is 3. In that case exchange A of I with A of largest. तो हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया था एंड स्वैप करके हमें क्या रिजल्ट मिला था? दिस इज 8, दिस इज 12, दिस इज 14, दिस इज 6. नाउ उसके बाद हमने मैक्स सिंप्लीफाई कॉल करा ऑन A एंड लार्जेस्ट. सो लार्जेस्ट इज दिस नोड, राइट? सो अब हमने मैक्स सिंप्लीफाई इस पे कॉल करा. नाउ जब हम मैक्स सिंप्लीफाई इस नोड पे कॉल करेंगे सो इसका L क्या होगा? इसका L ये वैल्यू है 7, राइट? दिस इज 6, दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 1. सो इस लार्जेस्ट वाली नोड के लिए इसके L क्या होगा? L हो जाएगा 14 एंड R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा 15. एंड L is L less than the A dot heap size? Heap size तो हमारा 7 ही है. That means L और R हमारे कोई exist ही नहीं कर रहे. So we will exit the max simplify for this node, right? क्योंकि इसके कोई children ही नहीं है और L और R जो है वो exist ही नहीं करते और हमारा heap size क्या है? 7 है. Now we call heapify on this node which is index 2. इंडेक्स 2 के लिए अब हम कॉल करेंगे. I की वैल्यू क्या है? 2. L की क्या वैल्यू हुई? L की वैल्यू हुई 4 एंड R की क्या वैल्यू हुई? 5. दैट इज इसके लेफ्ट हैंड राइट चाइल्ड. नाउ इज L लेस देन A डॉट हीप साइज? यस. एंड A ऑफ L पे क्या वैल्यू है? A ऑफ L पे वैल्यू है 8. 8 इज ग्रेटर देन A ऑफ 2? यस, 8 इज ग्रेटर. तो हमने इस वाली नोड को डिक्लेयर कर दिया एज लार्जेस्ट. नाउ कमिंग टू द राइट एंड साइड पार्ट, R की वैल्यू है 5. 5 लेस देन और इक्वल टू A डॉट हीप साइज? यस. एंड A ऑफ R पे क्या वैल्यू है? A ऑफ R पे वैल्यू है 12. इज 12 ग्रेटर देन लार्जेस्ट? यस. सो डिक्लेयर दिस नोड एज योर लार्जेस्ट. सो लार्जेस्ट अब हमारी राइट वाली नोड हो गई. लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू I. लार्जेस्ट वाली इंडेक्स लार्जेस्ट वाली नोड का इंडेक्स है 5 एंड इसका इंडेक्स है 2. सो वी विल स्वैप द 2. स्वैप करके हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा? 1, 12, 16, 8, 5, 14 and 6, right? And call max simplify on largest. So this was the largest. अब अगर हम इस पे max simplify कॉल करेंगे, again it will exit. Why? Because क्योंकि इसके कोई लेफ्ट और राइट साइड नहीं है और हमारा हीप साइज क्या है? 7 है. Now we will call max simplify on I equals to 1, that is our root node. Now let's call max simplify on I equals to 1. I equals to 1 के लिए L क्या होगा इसका? That is 2 and R क्या होगा इसका? 3. So these are the indices. Now is L less than A dot heap size? Yes. And A of L पे वैल्यू है 12. 12 is greater than A of I? 1? Yes. So largest हमने डिक्लेयर कर दिया इसको. This is our largest. Now coming to right hand side, R पे जो वैल्यू R is 3. 3 is less than A dot heap size? Yes. A of R पे क्या वैल्यू है? 16. 16 is
ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट, यस, सो लार्जेस्ट डिक्लेयर कर दो इसको एंड स्वैप ए ऑफ आई विद द लार्जेस्ट। तो 16 यहाँ पे आ गया एंड 12, बाकी 1 यहाँ पे आ गया, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स एज इट इज। Now we have to call max CP5 on the largest node. So this was the largest node, तब हमें max CP5 कॉल करना है इस नोड के लिए। So I की क्या वैल्यू है, I is 3, so max CP5 कॉल हुआ for max CP5 on array A with largest value as 3. So now L की क्या वैल्यू है इसके लिए, L हुआ इसके लिए 6, R हुआ इसके लिए 7. So is L less than A dot heap size? Yes. And A of L पे क्या वैल्यू है, A of L पे वैल्यू है 14. Is A of 6 greater than A of I? Yes. So this becomes our largest. Now coming to right hand side, 7 is less than A dot heap size? Yes, 7 is equal to A dot heap size and heap size is also 7. And A of R पे क्या वैल्यू है, A of R पे वैल्यू है 6. Is 6 greater than A of largest? No. So largest हमारी यही वाली नोड रही and largest is not equal to I, so exchange A of I with A of largest. So ये आ गया 14 and 1 आ गया यहाँ पे। Now we will call max CP5 on this node. मैक्स CP5 जब इस पे कॉल करेंगे तो अगेन ये एग्जिट हो जाएगा, व्हाई, बिकॉज क्योंकि इसके कोई लेफ्ट हैंड राइट चाइल्ड नहीं है, ये प्रॉपर्टी जो है यहीं पे फेल हो जाएगी। सो बेसिकली ये जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे डाली है, L लेस देन इक्वल टू A डॉट हीप साइज एंड R लेस देन इक्वल टू A डॉट हीप साइज, ये इसलिए डाली है ताकि हम चेक कर सके कि किसी नोड पे जिसपे हम लार्जेस्ट कॉल कर रहे हैं, जिसपे हम मैक्स CP5 कॉल कर रहे हैं, उस पे लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते। सो अगर नहीं करते तो मैक्स CP5 अगेन कॉल नहीं होगा, और अगर करते हैं तो मैक्स CP5 अकॉर्डिंगली कॉल करेंगे। So this was about max CP5 procedure. Now let's look at the time complexity for max CP5. Now max CP5 में अगर हम देखें, max CP5 में क्या हो रहा है, हम एक एक लेवल हर एक कॉल के साथ नीचे आते जा रहे हैं, राइट। अगर सबसे पहले हमने max CP5 यहाँ पे कॉल किया, देन स्वैपिंग के बाद नेक्स्ट max CP5 जो लार्जेस्ट नोड है वो इस पे कॉल हुआ, तो इस max CP5 के बाद हम एक लेवल नीचे आ गए, राइट। जब हमने सेकंड नोड पे मैक्स CP5 कॉल किया, अगेन हम एक लेवल नीचे आ गए, नेक्स्ट मैक्स CP5 कॉल जो इन दोनों में से लार्जेस्ट नोड थी उस पे कॉल हुई थी। जब हमने फर्स्ट नोड के लिए मैक्स CP5 कॉल किया तो नेक्स्ट मैक्स CP5 इस पे कॉल हुआ एंड देन नेक्स्ट मैक्स CP5 इस वाली नोड पे कॉल हुआ, राइट। सो मैक्स CP5 की हर एक कॉल के साथ हम एक एक लेवल नीचे आते जा रहे हैं, राइट। सो अगर वर्स्ट केस में अगर लेट्स से हमारी ट्री की जो हाइट है वो कुछ इस टाइप से है, सपोज हमारा बाइंड हीप कुछ इस टाइप से है, और सपोज हमने रूट नोड के लिए मैक्स CP5 को कॉल किया, इसके लिए मैक्स CP5 कॉल हुआ, देन नेक्स्ट नोड सपोज इसके लिए कॉल हुआ, देन नेक्स्ट इसके लिए, देन नेक्स्ट इसके लिए एंड सो ऑन। सो अल्टीमेटली कितनी कॉल्स हुई मैक्स CP5 की वर्स्ट केस में, अगर हम रूट नोड पे कॉल कर रहे हैं और अल्टीमेटली हर एक कॉल के साथ हम एक एक लेवल नीचे आते जा रहे हैं, और टोटल कितने लेवल्स हैं, टोटल हाइट क्या है हीप की, log n है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। सो बेसिकली हमने log n टाइम्स जो है मैक्स CP5 को कॉल किया। इन द वर्स्ट केस अगर हमने रूट नोड से स्टार्ट किया और हर एक कॉल के साथ हम एक लेवल नीचे आते जाए टिल द लास्ट नोड दैट इज टिल द लीफ, सो टोटल log n लेवल्स है, तो हमने log n टाइम्स मैक्स CP5 को कॉल किया, राइट। और हर एक लेवल पे हम दो कंपैरिजंस करते जा रहे हैं, राइट। पहला हम कंपैरिजन करते जा रहे हैं इस नोड का इसके साथ, फिर इन दोनों में से जो भी लार्जेस्ट है लार्जेस्ट इस नोड के साथ। सो हर एक लेवल पे हमारे दो कंपैरिजंस हो रहे हैं, और वर्स्ट केस में अगर हमारी हीप की जो हाइट है वो log n है, सो टोटल कितनी बारी मैक्स CP5 कॉल हुआ, 2 into log n टाइम्स, दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ log n, राइट। अब ये तो उस केस में है जब हमारा मैक्स CP5 रूट से स्टार्ट हुआ और हम लास्ट लीफ नोड तक उसको लेके गए, बट अगर हमारी मैक्स CP5 कोई इंटरमीडिएट नोड पे कॉल हो रहे हैं, लेट्स से ये है हमारा लेवल 1, ये है लेवल 2, सपोज हमने मैक्स CP5 जो है लेवल 1 पे कॉल हुआ, ठीक है, लेवल 1 पे कॉल हुआ, देन अकॉर्डिंगली इस नोड पे या इस नोड पे कॉल होगा डिपेंडिंग कौन सी हमारी लार्जेस्ट नोड है। सपोज हमने मैक्स CP5 जो है इस लेवल 2 की इस वाली नोड पे कॉल हुआ,
राइट? सो अगेन नेक्स्ट मैक्स सीपी5 तो इनमें से किसी के लिए कॉल होगा ही नहीं, क्योंकि दिस इज द लीफ नोड, राइट? सो बेसिकली इन दोनों केसेस में तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी हाइट log n होगी. सो बेसिकली मैक्स सीपी5 का रनिंग टाइम इस पे डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सी नोड पे उसको कॉल कर रहे हैं. अगर हम उसको ऐसी नोड पे कॉल कर रहे हैं जिसकी हाइट है 1, तो अकॉर्डिंगली मैक्स सीपी5 की उतनी कॉल्स होगी. अगर हम उसे कुछ ऐसी नोड पे कॉल कर रहे हैं जिसकी हाइट है 2, तो अकॉर्डिंगली उसकी रनिंग टाइम होगा. और अगर हम उसको ऐसी नोड पे कॉल कर रहे हैं जिसकी हाइट जो है वो है log n, जैसे रूट नोड है, सो अकॉर्डिंगली उसका रनिंग टाइम होगा, राइट? सो अगर हमारी जो ट्री है उसकी हाइट है h, so can we say that the running time of max CP5 is order of h? That is, it basically depends the height of the node on which it is called. Height of the node on which it is called. Right? So the running time of max CP5 procedure is order of h. Now if we look at the space complexity कितनी होगी? Now space complexity जो है यहाँ पे हम देखें, हमारा रिकर्सिव फंक्शन है, रिकर्सिव प्रोसीजर है मैक्स सीपी5, एंड रिकर्सिव कॉल्स जो होती है उनमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस चीज पे डिपेंड करता है कि हम जो स्टैक मेंटेन कर रहे हैं उन रिकर्सिव कॉल्स के लिए उसमें कितने लेवल्स होंगे, राइट? सो नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स made is equivalent to number of levels in the stack. In this case हमारे जो मैक्सिमम लेवल्स हैं वो log n है, बिकॉज हमारी जो ट्री है उसकी हाइट log n है. तो मैक्सिमम हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में क्या हो सकती है? ऑर्डर ऑफ log n. So the space complexity for max CP5 procedure is order of log n, and the running time of max CP5 procedure is order of h. That is, it depends on the height of the node on which it is called. So this was all about max CP5 procedure. In the upcoming video, we'll look at the build max C procedure and the heap sort procedure. If you like the video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.